नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब एंड मर्जर ऑफ हिल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश। पंजाब का पुनर्गठन और पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय। The question of reorganization of Punjab cropped up in 1965. पंजाब के पुनर्गठन का प्रश्न 1965 में उठा। On 1st November 1966, based on the recommendations of the Punjab Boundary Commission, the Government of India reorganized Punjab into two separate states, Punjab and Haryana, and integrated the Punjab hill areas with Himachal Pradesh under the provision of the Punjab Reorganization Act 1966. 1 नवंबर 1966 को पंजाब सीमा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने पंजाब को दो अलग-अलग राज्यों पंजाब और हरियाणा में पुनर्गठित किया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के साथ एकत्रित किया। These hill areas included the district of Kangra, Shimla, Kullu and Lahore Spiti. इन पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल थे जिले कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति। नालागढ़ एरिया ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट, अंबाला जिले का नालागढ़ क्षेत्र। पार्ट्स ऑफ ऊना तहसील of होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एंड होशियारपुर जिले की ऊना तहसील के कुछ हिस्से और पार्ट्स ऑफ पठानकोट तहसील ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील के कुछ हिस्से। Consequent to these mergers, 4 new districts were constituted in Himachal Pradesh, viz. Kullu, Lahore and Spiti, Kangra and Shimla. इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में 4 नए जिले अर्थात कुल्लू, लाहौल और स्पीति, कांगड़ा और शिमला का गठन किया गया। Due to this, the number of districts in Himachal Pradesh increased from 6 to 10. इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई। Besides this, Nalagarh Tehsil with its 688 villages and Nalagarh town, which was a part of the then Ambala district of Punjab, was included in Shimla district after its transfer to Himachal Pradesh in 1966. इसके अतिरिक्त नालागढ़ तहसील अपने 688 गांव और नालागढ़ कस्बे के साथ, जो कि तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले का हिस्सा था, को 1966 में हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित करने के बाद शिमला जिले में शामिल कर दिया गया। It is noteworthy that prior to independence, this area was the Nalagarh Hill State, which was integrated with Papsu, Patiala and East Punjab States Union in 1948. Subsequently, on November 1, 1956, Papsu was merged with पंजाब। उल्लेखनीय है कि आजादी से पहले यह क्षेत्र नालागढ़ हिल स्टेट था, जिसे 1948 में पेप्सू, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ
के साथ एकत्रित कर दिया गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। The 290 villages and Una town of Una Tehsil of Hoshiarpur district of Punjab transferred to Himachal Pradesh were included in Kangra district. पंजाब के होशियारपुर जिले की ऊना तहसील के 290 गांव और ऊना कस्बे को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर कांगड़ा जिले में शामिल किया गया। The three towns of Gurdaspur district of Punjab, namely Dalhousie MC Municipal Committee, Dalhousie CB Cantonment Board, and Baklol BC Cantonment Board were transferred to Himachal Pradesh and incorporated into the Bhatiyar Tehsil of Chamba district. पंजाब के गुरदासपुर जिले के 3 कस्बों अर्थात डलहौजी एमसी नगर समिति, डलहौजी सीवी छावनी बोर्ड और बकलो सीबी छावनी बोर्ड को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया और चंबा जिले की भटियात तहसील में शामिल कर दिया गया। This integration of these areas from Punjab into Himachal Pradesh significantly increased the state's territory, making it larger in geographical areas than Punjab, Haryana और केरला। पंजाब से इन क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने से राज्य का क्षेत्रफल काफी बढ़ गया, जिससे यह भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा या केरल से बड़ा हो गया। With this addition, Himachal Pradesh comprised of 10 districts, an area of 55,673 square kilometers and a population of 28.12 lakh according to 1961 census. 1961 की जनगणना के अनुसार इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 10 जिले 55,673 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 28.12 लाख की जनसंख्या शामिल हो गई। Upon the integration of hill areas from Punjab, all the members of the Legislative Assembly representing the hill areas in the Punjab Vidhan Sabha were declared to the members of the Himachal Vidhan Sabha. पंजाब से पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण के बाद पंजाब विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधानसभा सदस्यों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सदस्य घोषित कर दिया गया। Thus, with the merger of new areas into Himachal Pradesh in 1966, the number of members in the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh Union Territory increased from 43 to 56, including 2 nominated. इस प्रकार 1966 में नए क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय के साथ हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 43 से बढ़कर 56 हो गई, जिनमें 2 मनोनीत सदस्य शामिल थे। In January 1967, 2 more minister Bakshi Pratap Singh and Lal Chand Prathi from the new areas were added to the 3-member cabinet of Dr. Yashwant Singh Pramar.
जनवरी 1967 में नए क्षेत्रों से 2 और मंत्री बख्शी प्रताप सिंह और लालचंद प्रार्थी को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। The strength of the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh Union Territory was further raised to 63, 60 elected and 3 nominated after Section 24(3) of Punjab Reorganization Act 1966, Act number 31 of 1966 came into force in 1967. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 1966 का अधिनियम संख्या 31 की धारा 24(3) के 1967 में लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या को और अधिक बढ़ाकर 63, 60 निर्वाचित और 3 मनोनीत कर दिया गया। The state went to the polls in February 1967. राज्य में फरवरी 1967 में चुनाव हुए। Dr. Yashwant Singh Parmar was the third time sworn in as the Chief Minister on March 14, 1967. Lalchand Prathi and Hari Ram Chaudhary were sworn in as ministers. Dr. Yashwant Singh Parmar ने 14 मार्च 1967 को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लालचंद प्रार्थी और हरिराम चौधरी ने मंत्री के रूप में शपथ ली। The cabinet was expanded on April 22, 1967 to include Ramlal and Sukhram as ministers. 22 अप्रैल 1967 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें रामलाल और सुखराम को मंत्री बनाया गया। इन एडिशन दौलत राम सांख्यान, करतार सिंह वजीर, महंगा सिंह एंड नेक राम नेगी वर सोन इन एज डिप्टी मिनिस्टर्स। इसके अलावा दौलत राम सांख्यान, करतार सिंह वजीर, महंगा सिंह और नेक राम नेगी ने उप मंत्री के रूप में शपथ ली। The chief minister again expanded his cabinet on July 20, 1967. Thakur Karam Singh and Padam Dev were included as ministers and Vidyadhar was sworn in as a deputy minister. 20 जुलाई 1967 को मुख्यमंत्री ने पुनः अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। ठाकुर करम सिंह और पदम देव को मंत्री के रूप में शामिल किया गया तथा विद्याधर को उप मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष आऊंगी कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।